पाठ क्रमांक 1 विविधता की समझ। चैप्टर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती है। People are different from each other in many ways. Not only do they look different, but they might also belong to different regional, cultural, or religious backgrounds. These differences enrich our lives in many ways and also make them more fun. समीर एक तथा समीर दो में अंतर। समीर एक को अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर दो हिंदी बोलता है। समीर एक हिंदू है, वहीं समीर दो मुसलमान है। समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी जबकि समीर दो अखबार बेचता था। खानपान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। Differences between Sameer 1 and Sameer 2. Sameer 1 is more familiar with English, Sameer 2 speaks Hindi. Sameer 1 is a Hindu, Sameer 2 is a Muslim. Sameer 1 goes to school, Sameer 2 sells newspapers. Food habits, clothes, religion, language, etc. are some aspects of diversity. गैरबराबरी या असमानता का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर है और न ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार ही होती और आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। Inequality comes about when a person does not have the resources and opportunities that are available to other persons. The caste system is another example of inequality. According to this, society was divided into different groups depending upon the work that people did and they were supposed to remain in those groups. So if your parents were potters you could only become a potter, nothing else. This system was considered irreversible. And because you were not supposed to change your profession. विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है? विविधता हमें विभिन्न प्रकार के खानपान, रहन-सहन, संस्कृति, त्योहार, विचार, भाषा, गीत तथा इतिहास आदि को जानने का अवसर देती है। Inequality or diversity give opportunity to know about different things like food habits, lifestyle, culture, festivals, thoughts, languages, songs and history of different people. भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। Diversity in India. India is a country of many diversities. We speak different languages, have various types of food, celebrate different festivals, practice different religions. हम विविधता को कैसे समझें? करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में, घोड़ों या ऊँटों पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर। How do we explain diversity? A little more than 200 years ago or long before the train, aeroplane, bus or car became a part of our lives, people travel from one part of the world to another, in ships, on horses, on camels or on foot. अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चंकीय यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण पेट भर भोजन की तलाश में, काम की तलाश में और युद्ध के कारण लोग घर छोड़ देते थे। Often, they went in search of new lands or new places to settle in, or for people to trade with.
And because it took so long to travel, once they got to a place, people stayed there, often for a long time. Many others left their homes because there were famines and drought and they could not get enough to eat. Some went in search of work while others left because there was a war. लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन-सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीजें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीजों में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिलीजुली संस्कृति उभरती। Sometimes, as they began to make their homes in new places, people began to change a little, and at other times they managed to do things in the old ways. So their languages, food, music, religions became a mix of the old and the new, and out of this intermixing of cultures came something new and different. हमारा इतिहास हमारे जीवन तथा संस्कृति को प्रभावित करता है, उसी प्रकार हमारा पर्यावरण तथा भौगोलिक स्थितियां भी विविधताओं को जन्म देती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। न केवल वहां के लोगों के कपड़ों और खान-पान की आदतों में फर्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे, वे भी अलग होंगे। The history helped to shape life and culture there. Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. For example, living near the sea is quite different from living in a mountainous area. लद्दाख लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं, जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसीलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को बौद्ध लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। Ladakh Ladakh is a desert in the mountains in the east of Jammu and Kashmir. Very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year. There are very few trees that can grow in the region. For drinking water, people depend on the melting snow during the summer months. People here keep sheep and goats. The goats in this region are special because they produce pashmina wool. This wool is prized and pashmina shawls cost a lot of money. The people in Ladakh carefully collect the wool of the goats and sell this to traders from Kashmir. Pashmina shawls are chiefly woven in Kashmir. The people eat meat and milk products like cheese and butter. Each family owns some goats, cows and dezidos, yak cows.
Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders. It was considered a good trade route as it had many passes through which caravans traveled to what is today called Tibet. These caravans carried textiles and spices, raw silk and carpets. Buddhism reached Tibet via Ladakh. Ladakh is also called Little Tibet. Ladakh has a very rich oral tradition of songs and poems. Local versions of the Tibetan national epic the Kesar Saga are performed and sung by Buddhists. केरल केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता करीब 700 साल पहले यहाँ आए। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें हिंदू, बौद्ध, यहूदी, इस्लाम एवं ईसाई धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीनावला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। केरला Kerala is a state in the southwest corner of India. It is surrounded by the sea on one side and hills on the other. A number of spices like pepper, cloves and cardamoms are grown on the hills. It is spices that made this region an attractive place for traders. Jewish and Arab traders were the first to come here. The Apostle of Christ, Saint Thomas is believed to have come here nearly 2000 years ago and he is credited with bringing Christianity to India. Many Arab traders also came and settled down here. Ibn Battuta, who travelled here a little less than 700 years ago, the Portuguese discovered the sea route to India from Europe when Vasco da Gama landed with his ship here. Because of all these various historical influences, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism. The fishing nets used here look exactly like the Chinese fishing nets and are called chanawala. Even the utensil used for frying is called the chinchatti, and it is believed that the word chin could have come from China. The fertile land and climate are suited to growing rice and a majority of people here eat rice, fish and vegetables. जहां केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहां केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, the history of both regions has seen similar cultural influences. Both regions were influenced by Chinese and Arab traders. It was the geography of Kerala which allowed for the cultivation of spices and the special geographical location of Ladakh and its wool that drew traders to these regions.
Thus, history and geography are often tied in the cultural life of a region. विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं, क्योंकि उनमें काफी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। India's diversity has always been recognized as a source of its strength. When the British ruled India, women and men from different cultural, religious and regional backgrounds came together to oppose them. India's freedom movement had thousands of people of different backgrounds in it. They worked together to decide joint actions, they went to jail together, and they found different ways to oppose the British. Interestingly, the British thought they could divide Indians because they were so different, and then continue to rule them. But the people showed how they could be different and yet be united in their battle against the British. दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सैयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे, गोली खा के सोए जलिया बाग में हम, सूनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे, हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भीगो के जाना। दिन खून के हमारे, कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जान। दिन खून के हमारे, भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खलुए आम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला पुरुष, हिंदू मुसलमान एवं सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जानें गई और उससे भी ज्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। This song was sung after the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar, in which a British general opened fire on a large group of unarmed, peaceful people, killing many and wounding even more. Men and women, Hindus, Sikhs and Muslims, rich and poor had gathered to protest against the British. This song was composed and sung to honor the memory of those brave people. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity. Do you know the story of the Indian flag? It was used as a symbol of protest against the British by people everywhere. In his book The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside but rather
It was something deeper, and within its fold, the widest tolerance of belief and custom was practiced, and every variety acknowledged and even encouraged. It was Nehru who coined the phrase, unity in diversity, to describe the country. India's national anthem, composed by Rabindranath Tagore, is another expression of the unity of India. धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।